श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वे कलम के धनी और सरस्वती के पुत्र हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं और उन्होंने कश्मीर की विरासत, वहां की सांस्कृतिक धारा के विषय में वर्षों तपस्या की है, साधना की है। वे स्वयं कश्मीर की वेदना के ज्वलंत एक उदाहरण है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इनके संबंध में उनका बड़ा गहरा अध्ययन है। आदरणीय डॉक्टर बी.आर. मणि साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में संयुक्त महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय में महानिदेशक तथा इसके अतिरिक्त अपने लेखन और पूरा शोधों के माध्यम से देश में एक नई चेतना, नया चैतन्य जागृत किया। उनके प्रमुख पुरातात्विक खोजों में श्री राम जन्मभूमि में प्राचीन मंदिर की खोज, जिसने भारत में 400 वर्ष पुराने संघर्ष को तार्किक परिणति तक पहुंचाया और वहां राम मंदिर का बनना प्रारंभ हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हीं की खोजों के आधार पर वे प्रोफेसर बीबी लाल साहब अपना निर्णय दिया था, तो हम बड़े आभारी हैं। और प्रोफेसर संजय मंजुल जी, वे वास्तव में कहें तो भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक प्रवाह के हजारों वर्ष पुराना जो उसका स्रोत है, उसको पुनः विश्व के सामने लाने वाले तथा आर्य आक्रमण अवधारणा को मिथ्या सिद्ध करने वाले। He is a person who proved that the Aryan invasion theory is a fake theory, is a conspiratorial designed by the British and other people who wanted to show that the Indians were never belonging to this country and their roots were elsewhere. So he proved that the Aryan invasion theory is wrong and we all belong to this country, this land, Bharatvarsh, and we are all Harappans. I'm very grateful to all my friends, my team, Sudesh, Garima, Swastika, Yusra, Shishir. Everyone has worked very hard. I hope we will have a very scintillating and enriching session. Dr. Shyama Prasad Mukherjee was an academician par excellence. He became Vice Chancellor of Calcutta University at the age of 33, twice. His illustrious father, Sir Ashutosh Mukherjee, was also the Vice Chancellor of the same university. But Dr. Mukherjee worked to re-establish the supremacy and the glory of the Indian languages. He was the first Vice Chancellor in the country who invited Kavi Guru Rabindranath Tagore to deliver convocation address in Calcutta University in Bengali language. Before that, no university in the British time could even have dared to think that Indian language can be used for delivering any convocation address. He delivered convocation addresses in more than 20 major central universities in the country till 1948. His last convocation address was in the Delhi University. Before that, he delivered convocation addresses in Agra, Mysore, Patna, Calcutta, and several other universities. He was also the president of Mahabodhi Society. And his basic work was to encourage women empowerment through education and to add industrial subjects in the university curriculum. He worked for country's unity, for helping the people in Bengal and in Kashmir, and in mysterious circumstances, he attained martyrdom on 23rd June 1953 in Srinagar when he was jailed there under the Sheikh Abdullah regime. That's a very sad story. But Shyama Prasad Mukherjee was very much interested in Gilgit, Baltistan, in Iskardu, in bringing back the entire Jammu Kashmir back to India, for which Indian Parliament is committed through its unanimous resolution. ये सब कश्मीर हमारा है
और उस कश्मीर के जो हिस्से गुलाम कश्मीर हम कहते हैं, जो विदेशी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वे हमारा कश्मीर है। और वहां के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां के जो संस्मारक हैं, वे भारतीय संस्मारक हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को हमने राष्ट्रीय एकता के संस्मारक विषय पर जो प्रदर्शनी लगाई थी, उसका उद्घाटन हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी ने किया था। उसमें भी हमने पीओके के जो हमारे भारतीय स्मारक हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई थी। शारदा मठ, रघुनाथ मंदिर, और वे तमाम लगाए थे, क्योंकि वे भारतीय मॉन्यूमेंट। आज भी हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की जन्मदिन पर जो हम ये चर्चा कर रहे हैं और जो संकल्प ले रहे हैं, पुनः हम निर्बाध उन स्मारकों को देखने के लिए जाएंगे, और हम उसकी तैयारी के लिए ही यह एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं कि हम कम से कम अपने उन भारतीय संस्मारकों की पहचान तो रखें, उनका परिचय तो प्राप्त करें। हमने जम्मू कश्मीर में उस क्षेत्र के लोगों के लिए विधानसभा में सीटें छोड़ी, तो यह एनएमए इज प्राउड टू हैव दिस वेबिनार टुडे इन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट stalwart statesman, academician, and political leader who attained martyrdom for the country's unity. This is a very important and significant webinar, and it will be remembered for long. Thank you, sir. We are looking forward to hear your views. May I request Professor Manjul ji and then Professor Mani Saab, and the finale, final comments will be by Jawaharlal Paul Saab. Namaskar, Vande Mataram. You can begin, Manjul Saab. You can begin. ओके मैं सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, और 119वीं जन्मतिथि पे महान चिंतक दूरदर्शी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हार्दिक नमन करता हूं। और उसके साथ साथ जो विद्वत जन इसके बाद बोलने वाले हैं, डॉक्टर बी.आर. मनी साहब, जवाहरलाल पॉल साहब, मुझे पता है वो विषय के कितना सारगर्भित होगा, ये सुनने की अभिलाषा है। साथ ही जैसा कि पहले मैंने मनी सर से बात किया, और मनी सर जो मॉन्यूमेंट्स को वो ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम पुरातात्विक धरोहर, अन्य धरोहर की बात करें जो इस क्षेत्र को के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बल्तिस्तान की बात हो, चाहे लेह लद्दाख की बात हो, या जम्मू कश्मीर की बात हो, जो संस्कृति के अबाध उद्भव और विकास गाथा कहता है। थोड़ा सा मैं भी, और इसके अलावा थोड़ी सी शुरुआत करके मैं लद्दाख और ये इस क्षेत्र को कवर करूँ, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पावर प्रेजेंटेशन के साथ। प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन शेयर करने में।
आपकी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है। स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, स्क्रीन शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, क्योंकि स्क्रीन एक पावर पॉइंट के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र पे प्रकाश डालना चाह रहा था, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर अभी जब आ जाता है तब तक मैं ऐसे ही बात करता हूँ, स्क्रीन शेयर करने की मैं करूँगा। जब हम इस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि ये क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। स्क्रीन शेयर कैसे होगा? यहाँ स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन शेयर हमारा सामरिक दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि एक विविधता लिए हुए है। तो और यहाँ ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये भारत से जो प्लेन का पार्ट है, जो भूभाग है, उससे अलग करके तो बिल्कुल इस को देखा नहीं जा सकता है, ना तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, ना ही पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य में। किसी भी तरीके से इसको अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि कठिन भौगोलिक स्थिति है यहाँ की, तो जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है और जो हमारे मॉन्यूमेंट का सर्वेक्षण है, वो स्तर पे होना चाहिए था, उस स्तर पे नहीं हो पाया है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से बहुत ही दुर्गम है और संवेदनशील भी, साथ ही संवेदनशील भी है। इसलिए सघन पुरातात्विक सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। हाँ, जिन लोगों ने इस क्षेत्र पे काम किया है वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, और शायद उसके बिना हम इस क्षेत्र के को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हाँ, थोड़ा-सा जो विषयांतर की बात मैं कर रहा था कि मैं थोड़ा विषयांतर होना चाहता हूँ, वो है तिब्बत के कैलाश पर्वत की बात किए बिना शायद हम अपने उद्गम संस्कृति के उद्गम स्थल की बात ना कर पाऊँ। तो कैलाश और कैलाश मानसरोवर एक ऐसा स्थल है, जहाँ से हम समझते हैं कि न सिर्फ प्राकृतिक आर्किटेक्चर और जो धर्म और संस्कृति की बात है, उसका प्रभाव पूरे भारत के पे पड़ा, और कैलाश के जो आर्किटेक्चर है, प्राकृतिक आर्किटेक्चर है, उसकी परिकल्पना हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। तो वहाँ से अगर हम देखें, और एक रशियन स्कॉलर्स ने यहाँ तक कहा कि ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है कि मैन मेड हो, और इस तरह की, लेकिन बाद में विद्वानों ने इसे खारिज भी किया। उसके बाद हम आते हैं लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो ये पर्वतीय क्षेत्र ये बहुत ही ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक दर्रों से और दुर्गम रास्तों से, पहाड़ों से और इससे घिरा है। हम जानते हैं कि 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो गया, और दोनों यूनियन टेरिटरी जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अपनी अलग पहचान तो रखते ही हैं, साथ में जो आर्कियोलॉजिकल रूप से उसमें काफी समानता भी है। अगर हम देखें तो ये लद्दाख का पूरा क्षेत्र या जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान और मध्य एशिया से प्राचीन समय से ही जुड़ा रहा है, और ये व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रमुख था। यहाँ